بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ صبح سویرے ہی میں اماں کو بڑے بھائی کے گھر سے نکال کر چھوٹے بھائی کے گھر لے جانے کے لیے روانہ ہوئی تھی، کیونکہ میری اماں ٹی بی کی مریضہ تھیں جو رات بھر کھانس کر اس گھر میں سب کی نیند خراب کرتی تھی، جو کہ بڑی بھابھی کو بالکل پسند نہیں تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ ان کے بچوں کی نیند اس طرح پوری نہیں ہوتی اور اسی وجہ سے ان کی پڑھائی پر اثر پڑ رہا ہے، وہ اسکول میں توجہ کے ساتھ نہیں پڑھ پاتے۔ یہ سب کچھ اماں کی کھانسی کی وجہ سے ہوتا ہے۔ وہ کئی روز سے اس بات پر چڑتی رہی تھی اور کل رات تو حد ہی ہو گئی تھی۔ جب اماں کی کھانسی پر بھابھی کی آنکھ کھلی تو انہوں نے مجھے بہت بے عزت کیا اور بولی کہ اپنی ماں کو لے کر کہیں مر کیوں نہیں جاتی؟ بڑے بھائی کے علاوہ تمہارا ایک اور بھی تو چھوٹا بھائی ہے، ان کے گھر چلی جاؤ اپنی بیمار ماں کو لے کر۔ میں نے زندگی بھر تم لوگوں کا ٹھیکہ تو نہیں اٹھا رکھا کہ گھر میں بھی رکھوں اور اپنا چین اور سکون بھی برباد کروں۔ اماں جب تک ٹھیک تھیں تب تک تو میں کچھ نہیں کہتی تھی، لیکن اب میری برداشت جواب دے چکی ہے۔ میں نہیں رکھ سکتی ان کو اپنے گھر، چھوٹی کے پاس لے کر جاؤ۔ اگر وہ تم دونوں کو ساتھ نہ رکھے تو تم اکیلی ہی آ جانا واپس، لیکن میں اماں کو اب اپنے گھر میں گھسنے تک نہیں دوں گی۔ ساری رات نہ خود سوتی ہیں نہ ہمیں سونے دیتی ہیں۔ مجھے یہ ساری باتیں سن کر بڑا دکھ پہنچا تھا۔ بھابھی ویسے تو کم نہیں سناتی تھی، لیکن کل تو انہوں نے ہر حد پار کر ڈالی تھی۔ ایسے میں بھلا کہاں جاتی؟ انہوں نے رات کو ہی حکم جاری کر دیا تھا کہ صبح ہوتے ہی میں اس گھر میں تم دونوں کا چہرہ نہ دیکھوں۔ اسی لیے میں صبح ان سب کو سوتا ہوا چھوڑ کر اماں کو لے کر نکلی تھی۔ یہ فجر کا وقت تھا، میں نے اٹھ کر نماز ادا کی تھی۔ اماں کو رات کے پچھلے پہر ہی آرام آیا تھا اور وہ ابھی تک سو رہی تھی۔ میں نماز پڑھ کر اماں کے پیروں کی طرف چارپائی پر بیٹھ گئی تھی۔ اسے جگانے کا ابھی میرا دل نہیں کر رہا تھا کہ یہ چند گھڑیاں ہی تھیں جن میں وہ سکون سے سوتی تھی۔ ان کے چہرے کی طرف دیکھ کر میری آنکھیں بھر آئی تھیں۔ اماں نے بیٹوں کو پڑھانے، لکھانے اور اپنے پیروں پر کھڑا کرنے کی خاطر کیا کچھ نہ کیا تھا۔ اس کے چہرے پر ان ساری تکلیفوں کے آثار صاف ظاہر تھے۔ اماں بہت کمزور اور نڈھال سی ہو گئی تھی۔ بھری جوانی میں جب وہ بیوہ ہوئی تھی تب میرے بھائی بہت چھوٹے تھے اور میں تو بالکل بے سمجھ تھی، لیکن جیسے جیسے مجھے سمجھ آتی گئی تو میں نے دیکھا تھا کہ اماں کس طرح صبح دونوں بیٹوں کو اسکول بھیجنے کے بعد خود کام پر نکل جاتی اور 7-8 گھروں کے برتن دھونے کے بعد واپس آ کر ایک فیکٹری سے لائے ہوئے سلائی کے کپڑے سیتی رہتی۔ اس کے پاس ہاتھ سے چلنے والی ایک سلائی مشین ہوتی تھی جو وہ مغرب ہونے کے بعد اندھیرا چھا جانے تک چلاتی رہتی تھی۔ اسی دوران بھائی اسکول سے لوٹتے تو ان کو کام والے گھروں سے ملا ہوا کھانا گرم کر کے کھلاتی اور پھر میرے دونوں بھائی دوپہر میں کھانا کھانے کے بعد سو جاتے اور اماں مسلسل کام کرتی رہتی۔ عصر سے پہلے بھائی نیند سے اٹھتے تو باہر کھیلنے چلے جاتے، اندھیرا پھیلتے ہی بھائی کھیل سے لوٹتے اور اماں مشین رکھتی، پھر ہمارے لیے رات کا کھانا پکاتی، جو کھا کر بھائیوں کو یہ کہتی کہ جلدی سو جاؤ، صبح اٹھ کر اسکول بھی جانا ہے۔ آہستہ آہستہ ہم سب بڑے ہونے لگے۔ میرے بھائی کافی بڑے ہو چکے تھے اور مجھے بھی کافی سمجھ آ چکی تھی۔ میں اماں سے کہتی کہ تم اکیلی عورت ہو کر اتنی محنت کرتی ہو، بھائیوں سے بھی کچھ کام کروایا کرو، تو وہ کہتی نہیں، میں اپنے بیٹوں سے فی الحال کوئی کام نہیں کرواؤں گی۔ ابھی میری ہڈیوں میں اتنی جان ہے کہ میں محنت کر سکتی ہوں۔ یہ تو میرے بڑھاپے کا سہارا بنیں گے، جب میری ہڈیوں میں جان نہیں ہوگی اور یہ پڑھ لکھ کر اپنے پیروں پر کھڑے ہو چکے ہوں گے، تب اپنی ماں کا بوجھ اٹھائیں گے۔ آج مجھے اماں کی کہی ہوئی وہ ساری باتیں شدت سے یاد آ رہی تھی جو بالکل غلط ثابت ہو چکی تھی۔ اماں کی ہڈیوں میں اب ایسی جان نہ بچی تھی۔ وہ بوڑھی تھی، لیکن اس کا بوجھ اٹھانے کے لیے اس کے بیٹے اس کے ساتھ نہیں تھے، اسی لیے اس کی بہوؤں نے اسے اتنا ذلیل کر رکھا تھا۔ ابھی میں انہی سوچوں میں گم بیٹھی تھی کہ اماں بھی جاگ چکی تھی۔ میں نے اماں کو سہارے سے اٹھا کر پانی پلایا اور انہیں بتایا کہ بڑی بھابھی نے آج چھوٹے بھائی کے گھر جانے کا کہا ہے۔ وہ بولی کہ سرمد آ گیا کیا؟ سرمد میرے بڑے بھائی کا نام تھا۔ وہ کام کے سلسلے میں شہر سے باہر رہتا تھا اور 8-10 روز بعد ایک چکر گھر پہ لگایا کرتا تھا۔ اسی لیے اماں اور میں بھی بڑے بھائی کے گھر ہی رہتے تھے، کیونکہ بھابھی چھوٹے بچوں کے ساتھ گھر پر اکیلی ہوتی تھی۔ گھر میں اے سی وغیرہ نہیں تھا، اسی لیے ہم سب صحن میں ہی سوتے تھے اور پچھلے 2 ماہ سے اماں کو کھانسی کا عارضہ لگا تھا۔
भाई जब घर आता तो अम्मा को खांसी की दवा लेकर देता था, उससे कुछ आराम रहता था। लेकिन पिछले हफ्ते भाई घर आया तो मैंने उन्हें अम्मा की दवाई लाने का कहा, तो वो बोले कि पिछले 2 माह से हर हफ्ते अम्मा को खांसी का शरबत लेकर देता हूँ, उससे तो खांसी ठीक नहीं होती। अब और कितना खर्चा करूँ रोज़ रोज़ खांसी की दवाई लाकर। इसलिए इस हफ्ते दवाई ना मिलने पर अम्मा की खांसी ने बहुत ज़ोर पकड़ लिया। मैं कल उसे सरकारी अस्पताल लेकर गई तो उन्होंने टीबी का इंकशाफ किया। लेकिन सरकारी अस्पताल में दवाइयों की अदम मौजूदगी की वजह से इलाज ना हो सका और रात भर अम्मा को खांसी के दौरे पड़ते रहे। मैं तो उसकी औलाद थी, अम्मा के साथ एक ही चारपाई पर सोई थी। उसे खांसी आती तो मेरी नींद भी खराब होती। लेकिन मुझे अपनी नींद से ज़्यादा अम्मा की सेहत की फिक्र थी और उसकी तकलीफ़ का एहसास था। लेकिन भाभी तो उसकी अपनी औलाद नहीं थी, वो तो पराई बेटी थी। इसलिए जब जब अम्मा को खांसी होती तो भाभी को शदीद गुस्सा आता और वो मुझे डांटती रहती कि अपनी माँ का मुंह बंद करवाओ। मैं भला अम्मा का मुंह कैसे बंद करवाती? वो तो खुद बहुत मजबूर हो चुकी थी। हत्ता कि अम्मा खांसी रोकने की भी बहुत कोशिश कर रही थी, लेकिन ये उसके बस से बाहर था। इसलिए भाभी ने रात में ही मुझे हुक्म दे दिया था कि कल सुबह होते ही अपनी माँ को लेकर यहाँ से दफा हो जाना। अम्मा जाग चुकी थी। मुझे डर लगा कि कहीं उसे फिर से खांसी ना आ जाए, क्योंकि भाभी और बच्चे अभी तक सो रहे थे। इसलिए मैंने अम्मा को उठाया और अंदर से अपनी और अम्मा के कपड़ों की पोटली लेकर आई। आहिस्ता से घर का दरवाज़ा खोलकर हम दोनों बाहर निकलकर आ गए थे। सुबह इतना सवेरा था कि अभी तक गलियां वीरान पड़ी थीं। कोई इक्का दुक्का आदमी ही हमारी तरह अपने घरों से निकले थे, बाकी सब अपने घरों में आराम की नींद ले रहे थे। हम दोनों माँ बेटी मेरे छोटे भाई के घर की तरफ चल पड़े थे, जो यहाँ से थोड़ा ही फासले पर था। अम्मा कमज़ोरी के बायस ज़्यादा चल नहीं सकती थी, इसलिए वक्फे वक्फे से हम गली में कहीं बैठ जाते थे, ताकि अम्मा का थोड़ी देर सांस बहाल हो सके। रास्ते में आते जाते लोग हमें बड़ी हैरानी से देख रहे थे और उनकी नज़रों से बचने की खातिर मैं अपने फटे हुए दुपट्टे से खुद को ढांपने की नाकाम कोशिश कर रही थी। छोटे भाई के घर तक पहुंचने तक सूरज भी निकल आया था और हर तरफ उजाला फैल चुका था। अम्मा की रफ्तार के मुताबिक आहिस्ता आहिस्ता चलते आखिर हम पहुंच ही गए थे। दरवाजे पर दस्तक दी तो भाई ने दरवाज़ा खोला। वो हम दोनों को देखकर ज़्यादा खुश तो ना हुआ था, लेकिन फिर भी अंदर आने के लिए कहा। छोटी भाभी उस वक्त बावर्ची खाने में थी। शायद वो भाई और बच्चों के लिए नाश्ता बना रही थी। भाई ने बाहर से ही आवाज़ लगाई कि उज़्मा, देखो अम्मा और अनम आई हैं, इनके लिए भी चाय और नाश्ता लेकर आना। ये सुनते ही छोटी भाभी एकदम से बावर्ची खाने से निकल आई थी और हमसे यहाँ आने की वजह मालूम करने लगी थी। उसने अम्मा और मुझे ना सलाम कहा ना खुशामदीद, बल्कि पूछने लगी कि इतनी सुबह सुबह आप लोग क्यों आ गए? क्या बड़ी ने यहाँ भेज दिया है या फिर आप खुद आ गए हैं? इतने ज़्यादा सवालात इकट्ठे पूछने पर छोटे भाई ने उसकी तरफ गुस्से से देखा था, तो वो वापस बावर्ची खाने में चली गई थी। थोड़ी देर बाद वो बच्चों और भाई के लिए नाश्ता लेकर आई, तो भाई ने पूछा कि तुम अम्मा और अनम के लिए नाश्ता क्यों नहीं लेकर आई? भाभी ने कहा कि अभी मैंने इतना ही नाश्ता बनाया था, आप नाश्ता करके काम पर चले जाएं, बच्चों को स्कूल भेज दूं तो अम्मा के लिए नाश्ता बनाती हूँ। अब मुझे पहले तो नहीं पता था कि ये लोग आने वाले हैं, ये भी बगैर इत्तला किए आ गए हैं तो थोड़ा टाइम तो लगेगा। छोटे भाई ने शर्मिंदगी महसूस करते हुए अपनी प्लेट अम्मा की तरफ बढ़ा दी थी कि अम्मा पहले आप नाश्ता कर लें, लेकिन अम्मा ने ये कहकर नाश्ते की प्लेट उसे वापस कर दी थी कि तुम्हें काम पर जाना है, तुम पहले नाश्ता कर लो, हमारा क्या है, हम तो यहीं बैठे हैं, बहू बनाकर दे देगी। बाद में भाई और बच्चों ने नाश्ता किया और बच्चों को साथ लेकर भाई घर से निकल गए। तब छोटी भाभी ने 1 कप चाय का और 2 डबल रोटियां लाकर हमारे सामने रखी थीं। वो बोली कि घर में इतना ही दूध था, 2 कप चाय नहीं बन सकी, आप लोग आधा आधा करके पी लें। मैंने चाय अम्मा को ही दे दी थी, क्योंकि गर्म चाय पीने के बाद उसकी खांसी को कुछ आराम आता था और उसने कल रात ठीक से खाना भी नहीं खाया था। इसलिए दोनों डबल रोटियां भी मैंने अम्मा को ही दी थी। वो खाकर अम्मा थोड़ी देर लेट गई थी, क्योंकि वो ज़्यादा वक्त बैठ नहीं सकती थी। अम्मा लेटी तो मैं अंदर भाभी के पास आ गई। वो रिमोट हाथों में पकड़े टीवी पर मॉर्निंग शो देख रही थी और घर पूरा फैला पड़ा था। मैंने भाभी से पूछा कि कोई काम है अगर तो बता दें, मैं कर देती हूँ।
وہ میری بات پر خوش ہوتے ہوئے کہنے لگی، ارے انم، اگر تم کہہ ہی رہی ہو تو جاؤ پہلے باورچی خانے کی صفائی کر کے برتن دھو لو۔ وہ دراصل کام والی 3-4 روز سے آ نہیں رہی، اس لیے پورا گھر پھیل گیا ہے، ورنہ میرا گھر تو ہمیشہ صاف ستھرا اور سمٹا ہوا ہی رہتا ہے۔ تمہیں تو پتہ ہے تمہارے بھائی صفائی کے معاملے میں کتنے نفاست پسند ہیں۔ میں انہیں صرف جی کہتے ہوئے باورچی خانے کی طرف چلی گئی، جہاں باورچی خانے کی حالت دیکھنے کے قابل بھی نہیں تھی۔ میں نے سب سے پہلے سارے میلے برتن الگ کر کے دھونے والی جگہ رکھے اور دھلے ہوئے برتن اپنی اپنی جگہ سیٹ کیے۔ پھر نمک، مرچ اور چائے چینی کے سارے ڈبے چولہے کے پاس ہی پڑے تھے، جو سارے بھی میں نے شیلفوں میں رکھے اور برتن دھونے لگی۔ اتنے میں اماں نے مجھے بلایا تو میں بھاگ کر اس کے پاس آ گئی۔ اماں نے پانی مانگا۔ میں پانی باورچی خانے سے ہلکا گرم کر کے اماں کو دیا تو وہ پھر سے سو گئی۔ برتنوں کے بعد میں نے باورچی خانے کا فرش صاف کیا، جس پر چائے اور تیل کے داغ بنے ہوئے تھے۔ یہ سب کرتے کرتے مجھے پورے 2 گھنٹے گزر گئے تھے اور تب تک بھابھی کا مارننگ شو بھی ختم ہو چکا تھا۔ وہ میرے پاس باورچی خانے میں آئی تو باورچی خانے کی بدلی ہوئی حالت دیکھ کر ان کی آنکھیں چمک پڑی تھیں۔ شاید سالوں بعد باورچی خانے کی ایسی صفائی ہوئی تھی۔ بھابھی فوراً بولی، انم، آج ذرا تم میری کپڑے دھونے میں بھی مدد کر دو۔ پورے 1 ہفتے کے کپڑے جمع ہوئے پڑے ہیں۔ بچے اسکول سے آتے ہیں تو کوئی کام نہیں ہو پاتا مجھ سے۔ میاں کو بھی نہیں پسند کہ ان کی موجودگی میں کاموں میں لگی ہوئی ہوں، اور وہ جب کام پر جاتے ہیں تو اسی وقت ہی میرے پسندیدہ پروگرام ٹی وی پر لگتے ہیں۔ اسی لیے تو میں کپڑے دھو ہی نہیں پاتی، بس کھانا ہی جیسے تیسے کر کے وقت پر پکا پاتی ہوں۔ میں نے کہا، کوئی بات نہیں چھوٹی بھابھی، میں آ گئی ہوں، اب آپ کو کسی کام کی فکر کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ بڑی بھابھی کے بھی سارے کام میں ہی کیا کرتی تھی۔ وہ بولی، چلو ٹھیک ہے، جب تک تم یہاں ہو میں سکون سے سانس لے سکوں گی۔ اور یہ کہتے ہوئے وہ فریج سے گوشت کا پیکٹ نکال کر میرے حوالے کرتے خود اندر چلی گئیں اور کہہ گئی کہ گوشت چڑھا کر پھر مشین لگا دو، جب تک گوشت گلے گا تم کپڑے دھو لینا، روٹیاں تمہارے بھائی کے آنے کے بعد پکاتی ہوں۔ میں نے ان کے کہنے کے مطابق سارے کام کر دیے۔ بھائی آئے تو ان کو بھی میرا کام بہت پسند آیا۔ وہ گھر کی صاف صفائی اور کھانا اچھا پکا دیکھ کر خوش ہو گئے، اور میں بھی خوش تھی کہ یہاں کم از کم ہمیں ہر پل کی بے عزتی تو نہیں سہنی پڑتی۔ یہاں رہتے ہمیں 1 ہفتہ ہوا تھا۔ بھائی، بھابھی اور بچے اندر اے سی والے کمرے میں سوتے تھے، اس لیے اماں کی کھانسی سے بھی ان کو کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ ویسے دن میں بھی چھوٹی بھابھی زیادہ وقت اندر ہی ہوتی تھی۔ وہ ٹی وی دیکھنے کی بڑی شوقین تھی۔ ٹی وی دیکھتی یا فون میں گیم کھیلتی رہتی تھی، اسی لیے گھر کے کاموں میں اس کو مدد مل گئی تھی۔ باقی اماں اور میں دن بھر صحن میں نیم کے درخت کے نیچے چارپائی رکھ لیتے، وہیں ہمارا دن گزرتا، اور رات کو بھی ہم صحن میں ہی سوتے۔ اب ان کا کھانا وقت پر پک جاتا، گھر کی صفائیاں ہوتی، کپڑے دھلے اور استری ہوئے ملتے، تو ان کو ہمارے یہاں رہنے سے کوئی اعتراض بھی نہ ہوتا تھا۔ بھائی دوپہر میں کھانا کھا کر پھر باہر چلے جاتے تو رات گئے تک آتے تھے۔ بچے بھی ان کے گھر میں ہوتے تو ٹی وی یا موبائل استعمال کرتے یا پھر باہر کھیلنے چلے جاتے تھے۔ ہماری زندگی کے ایام یوں ہی گزر رہے تھے۔ ایک روز بھائی اور بھابھی ناشتہ کر رہے تھے۔ صبح کے وقت ہی بھائی تھوڑا وقت گھر والوں کے ساتھ بیٹھتے تھے، اس کے بعد ان سے بات کرنے کا وقت تک نہیں ملتا تھا۔ اماں کی کھانسی دن بدن بڑھتی ہی چلی جا رہی تھی، جو دن میں تو کچھ کم لیکن رات میں بہت شدید قسم کی حد تک ہوتی، جس کا صرف مجھے ہی پتا تھا۔ باقی سب کا اماں پر کوئی خاص دھیان نہ جاتا تھا، اس لیے میں نے بھائی سے کہا کہ اماں کے لیے کھانسی کی دوائی لا دیں، اماں کو رات میں بہت زیادہ کھانسی ہوتی ہے۔ بھائی نے بھابھی کی طرف دیکھا اور بولا کہ تم انم کو پیسے دینا، وہ خود دوائی لے کر آ جائے گی۔ پھر مجھ سے مخاطب ہوئے کہ میرے پاس اتنا وقت نہیں ہوتا، تم جانتی ہو میں 2 نوکریاں کرتا ہوں، جن میں سے وقت نکالنا بہت ہی مشکل ہے۔ تمہارے پاس اماں کی دوائی کا نام تو ہوگا ہی، تم عظمیٰ سے پیسے لے کر دوائی خود لے کر آنا۔ میں نے کہا، جی بھائی ٹھیک ہے۔ پھر بھائی دفتر چلے گئے اور میں نے بھابھی سے پیسے لے کر اماں کی دوائی لا دی۔ اماں کی دوائی کی بوتل عموماً 1 ہفتہ چلتی تھی۔ یہ ہفتہ ہمارا بڑا ہی آرام سے گزرا۔ اماں کو اس گھر میں آرام، سکون اور کھانا پینا صحیح سے مل رہا تھا، اس لیے اماں کی صحت بھی بنتی جا رہی تھی۔ اوپر سے کھانسی کی دوائی ملنے سے تو بیماری میں بہت حد تک آرام آ گیا تھا۔ ایک روز سنڈے کا دن تھا، چھوٹا بھائی بھی گھر پر ہی تھا۔ گھر میں بڑی چہل پہل لگی ہوئی تھی کیونکہ بچے بھی اسکول نہیں گئے تھے۔
इसीलिए भाभी भी बाहर बैठी थी। भाभी ने भाई से कहा कि मुझे कुछ नए जोड़े लेकर दें, बहुत वक्त हो गया है मैंने कोई नया जोड़ा नहीं लिया, पहनने के लिए कुछ खास बचा ही नहीं। तब भाई ने कहा कि ठीक है, जहाँ भी चलना है आज ही चलो, क्योंकि आज संडे है और कल से फिर मैं अगले संडे तक इतना मसरूफ़ हो जाऊंगा कि सर खुजाने तक की फुर्सत नहीं होगी। चलो मैं आज तुम्हें शॉपिंग पर लेकर चलता हूँ। भाभी अंदर चली गई ताकि तैयार होकर आ जाएं। इतने में मैं भाई के पास गई और उनसे कहा कि बहुत वक्त से अम्मा बीमार हैं। मैं उन्हें सरकारी अस्पताल भी लेकर गई थी, लेकिन डॉक्टर्स ने कुछ टेस्ट करवाने का कहा है। मैंने भाई को सीधा सीधा अम्मा की टीबी का नहीं बताया था, क्योंकि मैं डर गई थी कि अगर उन्होंने निकाल दिया तो मैं अम्मा को लेकर कहाँ जाऊंगी। बस इतना ही कहा था कि अगर आप आज फ्री हैं तो भाभी को शॉपिंग पर ले जाने के बाद शाम में अम्मा को डॉक्टर के पास भी लेकर जाएं। छोटे भाई ने इस बारे में जो जवाब दिया, मुझे उनसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उन्होंने कहा, मैं दिन रात मेहनत कर करके अपने बीवी बच्चों का खर्च मुश्किल से उठाता हूँ। तुम और अम्मा आए हो, इस पर भी हमारा खर्चा बढ़ा है। जानती हो, राशन में पूरे 4,000 का इजाफा हो गया है। जो पहले 40,000 तक आ जाता था, इस महीने पूरे 44,000 का आया है। वो तो मैं उज़्मा की फोहर तबीयत की वजह से चुप था कि चलो तुम्हारे रहने से उसे घर के कामों में मदद मिल जाएगी। खाने पीने का खर्च हमने उठा लिया है। तुम ऐसा करो, बड़े भाई आजकल घर ही आए हुए हैं। तुम अम्मा के इलाज की बात उनसे करो। अगर वो पैसे दे देते हैं तो तुम खुद ही अम्मा को अस्पताल लेकर चली जाना। इसमें कौन सी बड़ी बात है। और हाँ, उज़्मा की शॉपिंग का सुनकर ये मत सोचो कि मेरे पास उड़ाने के लिए बहुत सारे पैसे हैं। तुम जानती हो वो कितने बड़े घर से ब्याह कर आई है और पिछले कई माह से मैंने उसे एक जोड़ा तक नहीं लेकर दिया। अब 3-4 माह बाद शॉपिंग का तो उसका हक बनता है ना। आखिर वो मेरे बच्चों की माँ है। उनकी इतनी सारी बातें सुनकर मैं अपना सा मुंह लेकर अम्मा के पास जाकर बैठ गई थी और सोच रही थी कि मेरे भाई को अपने बच्चों की माँ के कपड़ों तक की फिक्र है और उसकी अपनी माँ दवाई के लिए तरस रही है और उसे ये इजाफी खर्चा लग रहा है। पर मैं क्या कर सकती थी। हम तो उनके घर की चार दीवारी में रहने के लिए भी मजबूर थे, क्योंकि हमें यहाँ पर छत भी मैसर नहीं थी। पूरा दिन और रात भी सहन में ही गुजरती थी। वो तो शुक्र है कि मौसम सही चल रहा था। मुझे तो डर लगने लगा था कि अगर कहीं बारिश वगैरह हो गई तो ये लोग तो हमें अंदर घुसने तक नहीं देंगे। छोटी भाभी शॉपिंग करके वापस आ गई तो उसका मूड बड़ा ही अच्छा था और उसने बड़ी भाभी को फ़ोन करके बताया कि आज मैं शॉपिंग पर गई थी। उन दोनों की यही आदत थी, अगर कुछ नया ख़रीद लेती तो एक दूसरे पर जताती ही रहती थी कि मैं तुमसे ज़्यादा खर्चे करती हूँ। इसीलिए उन्होंने बड़ी भाभी को बताया था कि आज मैं पूरे 4 ड्रेसेस लेकर आई हूँ और इसके अलावा भी बहुत सारी शॉपिंग की है। तुम आ जाना, मैं तुम्हें दिखाऊंगी। उन दोनों की दिखावे की खातिर बहुत बनती थी, लेकिन अंदर ही अंदर एक दूसरे से मुकाबला करती रहती थी कि कौन शौहर से खर्चे करवाने में आगे निकल जाती है। अगले ही रोज़ बड़ी भाभी अपने बाल बच्चों के साथ इधर आ पहुंची थी। बड़ा भाई शायद काम पर वापस जा चुका था और माँ का तो उसने पूछा तक नहीं कि वो क्यों घर छोड़कर गई है। जाहिर है बड़ी भाभी ने उन्हें सच तो बताया नहीं होगा कि उन्होंने हमें घर से निकाला है। बड़ी भाभी जैसे ही घर में दाखिल हुई तो उन्होंने और उनके सारे ही बच्चों ने अपने चेहरे पर मास्क पहने हुए थे। ये देखकर छोटी भाभी बड़ी ही हैरान हो गई थी और बड़ी भाभी से पूछने लगी कि अरे भाई, हमारे घर आने में भला आपको मास्क पहनने की क्या ज़रूरत है। तो बड़ी भाभी ने जो बताया वो सुनकर तो मैं दंग ही रह गई थी। उन्होंने कहा कि यार, जानती नहीं क्या, अम्मा को टीबी का आर्जा लगा हुआ है। ऐसे में अगर हम यहाँ बगैर मास्क के आ जाते, मुझे या बच्चों को अगर कुछ हो जाता, तो सरमद को तो तुम जानती नहीं, उसकी जान निकलने लगती है हमारी ज़रा सी तकलीफ देखकर। छोटी भाभी की तो ये सुनकर आंखें ही फटी की फटी रह गई थी कि अम्मा को टीबी का आर्जा लगा हुआ है। उन्होंने एकदम से मेरी तरफ देखा और पूछने लगी, अनम, क्या बड़ी भाभी ठीक कह रही हैं? अम्मा को टीबी है और तुमने हमें बताया तक नहीं? जानती नहीं तुम्हारे भाई कितने नफासत पसंद है और घर में हमारे छोटे छोटे बच्चे हैं। अगर मुझे, असद को या फिर हमारे बच्चों को कुछ हो गया तो उसका जिम्मेदार कौन होगा? मैंने उनसे कहा कि डॉक्टर ने कहा है कि अम्मा का आर्जा काबिले इलाज है। उनकी बीमारी अभी इतनी नहीं बढ़ी कि उनसे किसी दूसरे को लग सके। अगर आप भाई से कहें और वो अम्मा का अच्छी जगह इलाज करवाएं तो अम्मा बिल्कुल ठीक हो जाएंगी।
लेकिन बड़ी भाभी के कहने में आकर छोटी भाभी तो मेरी बात तक सुनने को तैयार नहीं थी। उसने फौरन छोटे भाई को फ़ोन किया और उसे कहा कि आप जल्दी घर आ जाएं और अम्मा को यहाँ से रवाना करें। उन्हें टीबी का मर्ज लगा हुआ है। अगर पूरे घर में फैल गया तो हमारा क्या होगा? बड़ी भाभी तो शाम तक अपना काम करके चली गई थी, लेकिन हमारा ये ठिकाना भी अब उनकी वजह से खतरे में आ गया था। मैं अम्मा के पास बैठी बड़ी खौफजदा थी कि कहीं सच में ही भाई ने हमें निकाल दिया तो हमारा क्या होगा? हम कहाँ जाएंगे? ये सोच सोचकर मेरे आंसू नहीं रुक रहे थे। आज छोटी भाभी ने मुझे किसी चीज़ में हाथ डालने ना दिया था, बल्कि खुद खाना पकाया था। उन्हें लगता था अम्मा से होता हुआ ये मर्ज मुझ तक और मुझसे उन तक पहुंच जाएगा। शाम में छोटा भाई घर आया तो एक अलग ही हंगामा खड़ा हो चुका था। उसने कहा, अनम, अम्मा को लेकर तुम कहीं और चली जाओ। मैं बाल बच्चों वाला हूँ, इसलिए अम्मा को यहाँ रखने का रिस्क नहीं ले सकता। मैंने उनसे कहा कि बड़ी भाभी पहले ही हमें निकाल चुकी हैं, अब उनके घर जाने की भी उम्मीद नहीं। अगर आप भी निकाल देंगे तो हम दोनों कहाँ जाएंगे? हमारा तो कोई ठिकाना नहीं। और फिर मैं उन्हें बचपन की बातें बताकर ये याद दिलाना चाहती थी कि अम्मा ने किस कदर मेहनत से उन्हें पाला था। मैं इतना ही बोली थी कि भाई, आपको वो दिन भूल गए जब अम्मा लोगों के घरों में काम कर करके आपको और बड़े भाई को पढ़ाती थी, ताकि उनके बेटे अपने पैरों पर खड़े हो जाएं और उनके बुढ़ापे का सहारा बने। अगर आप भी निकाल देंगे तो मैं अकेली लड़की माँ को लेकर कहाँ जाऊंगी? मैंने अभी ये अल्फाज बोले ही थे कि छोटी भाभी मुझ पर चिल्लाती हुई मेरे करीब आई और कहने लगी, शट अप लड़की, मेरे शौहर को जज्बाती तौर पर हरासा करने की कोशिश मत करो। उनकी सबसे पहली जिम्मेदारी उनके बच्चे और बीवी है। मैंने भाभी को तो कोई जवाब ना दिया, लेकिन भाई की तरफ सवालिया नज़रों से देखने लगी कि वो क्या फैसला करते हैं। लेकिन भाई मेरी उम्मीद के बरक्स मुझसे नज़रें चुराते हुए अंदर चले गए थे और उनके पीछे पीछे उनकी बीवी भी अंदर गई थी। मैं अम्मा के साथ वहीं चारपाई पर बैठी सोच रही थी कि कहाँ जाना चाहिए। थोड़ी देर बाद भाई भाभी एक दूसरे से सलाह मशवरे करके फिर बाहर आए थे और भाई बड़े ही सुरखरू होकर कहने लगा था कि अनम, मैंने इस बात का हल निकाल लिया है कि अम्मा को कहाँ रखा जाए। मैंने बड़ी ही उम्मीद भरी नज़रों से भाई को देखा तो वो कहने लगा कि अम्मा को मैं ओल्ड होम में भर्ती करवा दूंगा और तुम अगर चाहो तो बड़े भाई के यहाँ रहो या यहीं पर, वो तुम्हारी मर्जी है। मैं हैरत का पुतला बनी भाई को देख रही थी कि दो दो बेटों के होते हुए वो माँ को लावारिस लोगों की जगह छोड़ने की बात कर रहा था। इतने में मेरी भाभी मेरे थोड़ा करीब होकर बोलने लगी, अनम, तुम्हें कहीं जाने की ज़रूरत नहीं, तुम यहीं पर रहना, हम तुम्हारी हर जिम्मेदारी उठाने के लिए तैयार हैं। इसके पीछे भी उनका अपना लालच था कि मेरे होते हुए तो वो घर के किसी काम को हाथ नहीं लगाती थी। यकीनन मेरा खर्चा उनको किसी मुलाजमा की तनख्वाह से तो कम ही पड़ने वाला था, इसीलिए वो अपने मतलब की बात कर रही थी। लेकिन मैंने ऐसे लोगों के साथ रहने से साफ इनकार कर दिया था जो अपनी सगी माँ के ना हो सके थे। और अम्मा को लेकर मैं छोटे भाई का घर भी छोड़ आई थी और मेरे भाई को हमें यूं बाहर जाते देखकर ज़रा गैरत न आई थी। वो अपनी बीवी के पहलू में खामोश खड़ा हम माँ बेटी की मजबूरी का तमाशा देख रहा था। मैं घर से बाहर तो निकल आई थी, लेकिन मेरे पास ऐसी कोई जगह न थी जहां मैं अपनी बूढ़ी और बीमार माँ को रख सकती। वो वक्त भी शाम का था, दिन ढल चुका था। हम भाई के घर से थोड़ा दूर गली में ही थड़े पर बैठ गए थे। मेरे पास ना पैसे थे कि अम्मा को कुछ खिला सकूं और ना ही कोई चीज़। रास्ते में आते जाते लोग हमें अजीब नज़रों से देख रहे थे, क्योंकि ये वक्त ऐसा था कि हर कोई अपने अपने घरों को लौट रहा था। ऐसे में दो औरतें घर से बाहर क्या कर रही थीं, शायद ये बात सबको ही हैरान कर रही थी। वक्त गुजर कर शाम से रात होने को आई थी। गलियां बिल्कुल वीरान होने लगी थीं और चारों तरफ तन्हाई की दहशत फैलने लगी थी। अम्मा थकान के मारे निढाल हो गई थी। मैंने उन्हें गली के एक कोने में चादर डालकर अम्मा को लिटा दिया था और खुद पास बैठी उनका ख्याल कर रही थी। जब एक भला आदमी वहां से गुजरा और मुझसे पूछा कि बीबी, आप कौन हैं और यहाँ पर रात के इस वक्त क्या कर रही हैं? मैंने उसे बताया कि हम दो मजबूर माँ बेटी हैं जिनको अपनों ने घर से निकाल दिया है और रहने का कोई ठिकाना नहीं, जब ही यहाँ गली में पड़े हैं। वो भला शख्स तौबा तौबा करने लगा और बोला, आप अम्मा जी को उठाएं और मेरे साथ मेरे घर चलें। अल्लाह ने तौफीक दी तो मैं आपको कभी बेघर नहीं होने दूंगा।
हमें उस वक्त किसी सहारे की शदीद ज़रूरत थी, इसलिए उन्हें इनकार नहीं किया था और उनके साथ उनके घर चले आए थे। उनका घर 2 गलियां छोड़कर था। थोड़ा आगे चलकर अम्मा इतनी थक चुकी थी कि अब उससे सहारे पे भी चला नहीं जा रहा था। उस आदमी ने ये देखकर अम्मा को अपने कांधे पर उठा लिया था और हम उसके घर आ गए थे। उसका घर छोटा सा था जिसमें फ़कत 2 ही कमरे थे, लेकिन उसका दिल बहुत बड़ा था। वो हमें एक कमरे में बिठाकर खुद बावर्ची खाने में चला गया था और अपने लिए होटल से लाया हुआ खाना प्लेटों में डालकर हमारे सामने रख दिया था। वो बार बार अम्मा से बस दुआओं की अपील कर रहा था। मैंने एक प्लेट खाना उन्हें वापस कर दिया था कि ये आप खा लें। अम्मा और मैंने बस एक ही प्लेट से खाना खाया। वो हमें आराम का कहकर खुद दूसरे कमरे में सोने चला गया था। लेकिन अम्मा और मेरे दिल में भाइयों के रवैये देखकर जो तूफान उठ रहा था, उसने हमें पूरी रात सोने नहीं दिया था। ऊपर से उनको बार बार खांसी के दौरे पड़ रहे थे। पूरी रात खांस खांस कर अम्मा का बुरा हाल हो गया था। सुबह हुई तो वो भला इंसान हमारे कमरे में आया और बोला कि मैं नाश्ता लेने जा रहा हूँ, आप अम्मा को तैयार करें, नाश्ते के बाद मैं उन्हें डॉक्टर के पास लेकर जाऊँगा। पूरी रात अम्मा को बड़ी तकलीफ थी, खांसी की वजह से। मेरी आंखों में उनके अल्फाज सुनकर आंसू आ गए थे। ये पहला बंदा था जिसको ये एहसास था कि अम्मा को तकलीफ थी, वरना तो उनकी अपनी औलाद को लगता था कि अम्मा की वजह से उन्हें तकलीफ मिली है। मैंने अम्मा के मुंह हाथ धुलवा कर उनके कपड़े बदल दिए थे और उनके बाल भी बांधकर चोटी बना दी थी। इतने में वो भला इंसान नाश्ता लेकर आया। हमने पेट भर कर नाश्ता किया और अस्पताल के लिए निकल गए थे। मुझे यकीन नहीं आ रहा था वो अम्मा को दिखाने इतने महंगे अस्पताल लाया था। जहां पहुंचते ही अम्मा के बहुत सारे टेस्ट हुए थे और डॉक्टर ने उन्हें 6 माह का कोर्स दिया था कि वो इससे बिल्कुल ठीक हो जाएंगी। उस आदमी ने अम्मा को 3 माह की दवाइयाँ इकट्ठी खरीद दी थी और हम घर आ गए थे। घर पहुंचकर मैंने उनसे पूछा कि आप अकेले क्यों रहते हैं। तब उसने बताया कि माँ बाप बहुत वक्त पहले फौत हो चुके थे। उसके बाद मेरी शादी हुई, बीवी बच्चे, एक हंसती खेलती फैमिली थी। लेकिन एक हादसा ऐसा पेश आया जिसमें मेरी बीवी और 2 बच्चे इस दुनिया से चल बसे और मैं भरी दुनिया में अकेला रह गया। दूर पार के कुछ रिश्तेदार हैं, लेकिन उनसे मिलना जुलना बहुत कम होता है। फिर उसने अपना नाम बताते हुए कहा कि आप मुझे अफजल कह सकती हैं, ये मेरा नाम है। फिर अफजल ने कहा कि मेरा घर बहुत बड़ा था, लेकिन वहाँ हर पल मुझे बीवी बच्चों की याद सताती थी। वहाँ की हर चीज़ को देखकर मुझे वो याद आते थे। इसलिए वो घर बेचकर मैंने ये छोटा सा घर खरीद लिया और वो शहर तक छोड़ दिया। अब बहुत जल्द मैं सऊदी अरब मुंतकिल होने वाला हूँ। फिर हमेशा हमेशा के लिए वहाँ रहूँगा। कुछ रोज़ हमारे बड़े सुकून से वहाँ रहते गुजरे कि एक दिन अफजल ने आकर बताया कि अम्मा की दुआओं की बदौलत मेरा सऊदी अरब का वीज़ा लग गया है। अब मैं जल्द ही वहाँ चला जाऊँगा। लेकिन आप लोगों को फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं ये घर आपके नाम कर दूँगा और हर माह आपको वहाँ से ख़र्चा भी भेजता रहूँगा। अफजल तो जैसे हमारी ज़िंदगी में खुदा की तरफ से भेजा हुआ कोई फरिश्ता साबित हुआ था। वो वहाँ चला गया और पूरे 2 साल तक हमारा सहारा बना रहा। अम्मा की टीबी तो ख़त्म हो गई, लेकिन 2 साल ठीक ठाक रहने के बाद माँ फिर कमज़ोर होने लगी। शायद ये उम्र का तकाजा था, लेकिन मैं उन्हें जब हस्पताल लेकर गई तो पता चला कि अम्मा को फेफड़ों का कैंसर हो चुका है। अब अम्मा की ख्वाहिश थी कि वो अपनी ज़िंदगी के आखिरी अय्याम मक्का मदीना में गुजारे और उन्होंने अपनी इस ख्वाहिश का इजहार अफजल से किया। उसने फ़ौरन हम दोनों के कागजात तैयार करवाए। हमारी रवानगी में 2 रोज़ रह गए थे कि अम्मा ने कहा वहाँ जाकर शायद फिर वापसी ना हो। एक बार मैं बेटों से मिलना चाहती हूँ। इसलिए अम्मा की ख्वाहिश पर मैं उन्हें दोनों भाइयों से मिलवाने लेकर गई थी। सबसे पहले हम बड़े भाई के घर गए तो वो घर पर ही मौजूद थे और हमें देखकर बहुत शर्मिंदा शर्मिंदा से हो रहे थे। जब उनको पता चला कि हम दोनों मक्का मुकर्रमा जा रहे हैं तो बड़ी भाभी आकर माँ के कदमों में बैठ गई थी कि वहाँ जाकर मेरे लिए दुआ कीजिएगा। मुझे 2 साल से टीबी का मर्ज़ लगा हुआ है जो छोड़ने का नाम नहीं लेता। इस मर्ज़ ने मुझे किसी काम का नहीं छोड़ा। हर वक्त हड्डियों में दर्द रहता है। और जब छोटे भाई के यहाँ गए तो ये देखकर हैरत की इंतहा न रही कि उसकी बीवी 6 माह पहले ही उसे छोड़कर चली गई थी। साथ उनके बच्चे भी लेकर गई थी, जिनकी खातिर माँ बहन को घर से निकाला, उन्होंने भी उनका साथ ना निभाया। लेकिन हम तो 2 दिन के मेहमान थे और 2 दिन बाद ही उस पाक सरजमीन पर पहुँचने वाले थे
जहाँ जाने की अम्मा ने अफजल से ख़ाहिर ज़ाहिर की थी। एयरपोर्ट पर अफजल ने हमारा बहुत ही अच्छा इस्तकबाल किया और हमने पहले रोज़ उम्रा अदा किया, फिर मदीने का सफ़र भी नसीब हुआ। लेकिन अम्मा का साथ यहीं तक का था। वो मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर मालिक हकीकी से जा मिली। लेकिन क्या ही खूबसूरत मौत पाई थी अम्मा ने कि मक्का में उनकी तदफीन हुई थी। मेरा वीज़ा ख़त्म होने में अभी कुछ दिन रहते थे। मैं वहाँ रह रही थी जब अफजल ने बताया कि अम्मा रात को उसके ख्वाब में आई थी। फिर हम दोनों अम्मा की कब्र पर गए तो अफजल ने कहा कि अम्मा ने उसे ख्वाब में कहा है कि वो मुझसे निकाह कर ले। शायद अम्मा को जाते वक्त मेरी फ़िक्र लगी हुई थी, इसीलिए उन्होंने अफजल के ख्वाब में आकर ये बात कही थी। मैंने रजामंदी दिखाई और हमारा निकाह मदीना मुनव्वरा में पढ़ाया गया। अफजल ने अपने साथ साथ मेरे भी वहाँ हमेशा हमेशा रहने का बंदोबस्त कर दिया था और हम दोनों बहुत ही खुश व खुर्रम ज़िंदगी बसर करने लगे। अगर आपको हमारी आज की कहानी पसंद आई है तो इसे लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा।